A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of Class 12 Business Studies. You know very well in the last few videos we discussed a new chapter of Business Studies Part B, that is a Marketing Management. In this chapter we discussed a lots of the theoretical parts like what is marketing management, what are the function of the marketing management, what are the process of marketing management, as well as what are the importance of the marketing management for the marketing for the firms as well as for the economy. In the last video we discussed the function of marketing as well as the concept of marketing mix. You know very well, marketing mix is a combination of four elements, that is a product, price, place and promotion. Marketing mix refers to the tools or integrants which the marketer mix in order to interact with a particular market. As well as you can see on your screen the picture, they are basically four element of marketing mix. The first one is a product mix. Under the product mix we can take the decision related to the product quality, branding, packaging and labeling. Whereas in the price mix we can take the decision related to the price level, strategies and policies. As well as in the place mix we can take the decision related to the channel of distribution, order processing, inventories control, transportation and warehousing. As well as in the promotion mix we can take the decision related to the advertising of the product, personal selling of the product, sales promotion of the product and the public relation. Today we will move to the one by one detailed investigation and detailed information about all the four element of the marketing mix. First of all we discuss what is a product mix, thereafter we discuss what is a price mix, place mix and the promotion mix. Before the starting of the detailed information about those four elements, one by one we can take the meaning of the product. Product means the goods or services or anything or the value which is offered to the market for sale. It is a mixture of tangible and intangible attributes which are capable of being exchanged for a value. In other words, we can say product is a bundle of utility which provide the following three benefits: functional benefits, psychological benefits and as well as the number third is social benefits. When we are talking about the price, so price of a product refers to the amount of money that the customer has to pay in the market to obtain the product. Whereas when we are talking about the place, so place or physical distribution cover all the activities required to the physically move the goods from manufacturer to the consumer. As well as in the promotion refers to the process of informing the customer about the product and then persuading them to buy it. So this information we also studied in the last videos. Today we will move to the one by one ki what are the product mix, what are the price mix, what are the place mix and promotion mix. So as explained earlier, the product means goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसे हम ऑफ़र करते हैं मार्केट में सेल के लिए. जनरली इट इज़ यूज टू रेफर टू द फिजिकल और टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की जब की बात करते हैं तो वो फिजिकली प्रोडक्ट्स होते हैं एंड टेंजिबली विच कैन बी टच्ड. But otherwise product purchase is affected not only by the physical attribute but psychological factor also. Yes, when we are talking about the any product तो वो product सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है बल्कि वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इफेक्ट पड़ करता है. कभी कभी हम अपने साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण भी किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं. सो does a product provides the three types of the benefits, that is the functional benefits, psychological benefits and social benefits. You can see that the classification of the product, when we are talking about the classification of the product, so basically two types of the product. The first one is a consumer product and number second is a industrial product. What is a consumer product? Product which are purchased by the ultimate consumer for the direct satisfaction of their needs and want. यानी consumer product वो product होता है जिसे customer
खरीदता है फॉर द डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन के लिए। सपोज अगर हम मिल्क खरीदते हैं फ्रॉम द मार्केट, सपोज वी परचेज अ चॉकलेट फ्रॉम द मार्केट फॉर द सेल्फ कंजप्शन, उसको हम यूज़ करके उसे कंज्यूम करके हम अपने सेटिस्फैक्शन को fill out करते हैं। बट इन फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सो द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज अ इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं किसी अदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे लाइक रॉ मटेरियल्स, इंजन्स, मशीन्स एंड टूल्स। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम सेल के लिए नहीं यूज़ करते हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट हम लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि इस प्रोडक्ट की हेल्प से हम कोई अदर प्रोडक्ट जनरेट कर सकें और वो फिर बनेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट। सपोज इफ़ आई एम अ टी सेलर, सो टी इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, वेयर इज़ अ टी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लाइक अ मिल्क, like a sugar, like a tea, like a gas cylinder, as well as the room. So all the things will be categorized under the industrial product. And when we are talking about the consumer product can be classified into the two categories. The first one is durability basis and number second is shopping efforts involved. यानी कि जब हम consumer product को classify करते हैं तो उनको क्लासीफाई करने के लिए देयर आर बेसिकली टू बेसिस। एक ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरा शॉपिंग एफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड जब हम उसको ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं तो वी कैन फाइंड द 3 टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें एक बार में कंज्यूम करते हैं, लाइक अ कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, पेट्रोल एंड मिल्क, ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो दीज गुड्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड सर्वाइव मैनी यूज़, यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम एक लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी कई कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ फर्नीचर, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये ड्यूरेबल होते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट इज अ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्विसेज, तो इट मीन्स दोज एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, यानी सर्विसेज वो सारी एक्टिविटी होती हैं, वो सारे बेनिफिट्स या वो सारे सेटिस्फैक्शन जो हमें सेल के ऑफ़र में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली अगर हमें ओला की सर्विसेज मिल जाती हैं, यू कैन से जोमेटो की सर्विसेज मिल जाती हैं, स्विगी की सर्विसेज मिल जाती हैं, अ लॉट्स ऑफ सर्विसेज गिवन बाय द सेलर टू गेट द एडवांटेज फ्रॉम हर साइड और हिम साइड्स। सो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी बेसिक के हिसाब से कंज्यूमर प्रोडक्ट 3 कैटेगरी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल जिसे इमीडिएट कंजप्शन करना पड़ता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। And when we are talking about the second category of the consumer product, that is on the basis of shopping efforts, तो शॉपिंग एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। द फर्स्ट वन इज द कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी। सो कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं, दे आर यूजली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स विच आर परचेज एट कन्वीनियंट लोकेशन विद अ लीस्ट टाइम एंड एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, मेडिसिन, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं जिनको हम परचेस करते हैं कन्वीनियंट लोकेशन पे, कम टाइम में और कम मेहनत पे, और जनरली इनका कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स का, और इनका प्राइस का लेवल भी काफ़ी कम होता है, या कह सकते हो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है कन्वीनियंस गुड्स का। कंपटीशन ज़्यादा होता है और इन सारे प्रोडक्ट की रेगुलरली एंड कॉन्टीन्यूस डिमांड होती है। यू कैन सी दैट द न्यूज़पेपर और मेडिसिन देख लो, स्टेशनरी देख लो, तो ये रेगुलर सप्लाई में रहते हैं क्योंकि इनके डिमांड रेगुलरली मेंटेन रहते हैं मार्केट में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी शॉपिंग गुड्स या शॉपिंग प्रोडक्ट्स, दे आर परचेज्ड आफ्टर द डिटेल कंपैरिजन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। जनरली शॉपिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम खरीदते वक्त काफ़ी कंपेरेबिलिटी करते हैं, काफ़ी सोचते हैं, रैशनल लेते हैं, रैशनैलिटी होती है इनको खरीदने में। यानी कन्वीनियंस में हम लोग ज़्यादा मोल भाव या ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते हैं बेसिकली, बट शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको खरीदने से पहले हम काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एंड इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो काफ़ी हाई होती है, और
इस तरह के परचेस पहले से प्लान्ड होते हैं, यानी प्री प्लान्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, फर्नीचर खरीदने जाते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं, सपोज अगर हम एसी खरीदने जाते हैं, तो वी कैन टेक द प्राइस फिगर विद द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि इसकी डिफरेंट कंपनीज भी अवेलेबल हैं। वी हैव अ लॉट्स ऑफ एसीज कंपनी इन आवर मार्केट लाइक वोल्टास एंड अदर कंपनीज। सो हम उन सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट के फीचर्स और उनके प्राइस के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक रैशनल डिसीजन लेके उन सारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। द नंबर थर्ड प्रोडक्ट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। दीज आर परचेज एट अ फ्यू लोकेशन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कुछ ही लोकेशन में अवेलेबल होते हैं और इनको ख़रीदने में काफ़ी टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, और इसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाई होता है। एंड इन सारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है काफ़ी लो होती है। कन्वीनियंस की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, शॉपिंग की उनसे कम होती है, स्पेशलिटी की सबसे कम होती है, और इसमें जनरली कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं लाइक अ रेयर कलेक्शन ऑफ द आर्ट, अ हेयर कटर कटिंग सैलून एंड ड्रेस डिज़ाइनर। So we can say that the consumer product, the first one, the product can be classified into two category: consumer product and industrial product. And thereafter the consumer product classify into two categories. The first category is on the base of durability, that is a non-durable product, durable product and services. And consumer product classify into on the basis of the shopping effort, that is a convenient product, convenience product, जैसे हमें सुविधा मिल जाए वैसे ही मिल जाए प्रोडक्ट्स। शॉपिंग्स प्रोडक्ट, जिनको खरीदने के लिए हम पहले शॉपिंग्स करें, इन्वेस्टिगेशन करें। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रेयर कलेक्शंस होती हैं, वो सारी चीज़ों में नहीं होता। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, बट दिस पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, but for the general knowledge you can see, you can take the knowledge. So what is industrial product? Industrial products include the materials and parts, capital items and supplies and business services. So please listen carefully, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में या गुड्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? मटेरियल्स को इंक्लूड करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, कैपिटल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं लाइक इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। सो फॉर एग्जांपल कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स, बैटरीज, ग्लास, आयरन, प्लास्टिक्स एंड कैपिटल आइटम्स लाइक elevators, plant, mainframe, computers, equipment like hand tools, fax machines, personal computers. And for the third category, that is supplies and business services like a paint, nails, lubricants, stationery and writing papers. So this is a basic general knowledge regarding the product. So you can see that the consumer product can be classified into two categories on the basis of two categories. And number second, industrial product can be categorized into three categories. The number one is the material and parts, number two capital item, number three supplies and business services. So after the discussing of the types of product, now we will move to the product mix. What is product mix? अब हम लोग आ गए वो उस टॉपिक पे कि जिस पे हमें ये ध्यान रखना है कि what is a product mix. हमने प्रोडक्ट तो जान लिया क्या होता है, ये प्रोडक्ट मिक्स क्या है? A product is not just a physical tangible object, it is rather a bundle of services associated with the utilization of that product. Apart from the physical product services, product mix consists of branding, packaging and labeling. Yani we can take the product mix. Product mix refers to the decision regarding the branding, packaging and labeling of the product. Listen carefully, what is product mix? Product mix is a combination of the decision regarding the branding, packaging and labeling of the product. So first of all, one by one we study the what is branding, thereafter we discuss packaging and thereafter we discuss the labeling. So first one is our branding. You can see on your screen what is branding. A brand is a name, term, sign, symbol, design or some combination of them used to identify the product and differentiate it from that of its कॉम्पिटिटर्स। यानी ब्रांडिंग या ब्रांड एक तरह का नाम होता है बेसिकली, या टर्म होता है, या कोई साइन होता है, या कोई सिंबल होता है, या कोई डिज़ाइन होता है,
या कोई अदर कम्बिनेशन होता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट दैट ऑफ इट्स कस्टम कॉम्पिटिटर्स, यानी कि वो हमारे कॉम्पिटिटर से एक अलग प्रोडक्ट दिखता है. सो दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड. व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड इज अ नेम, term, sign, symbol or some combination of them used to identify the product and differentiate it from of its competitors. यानी ब्रांड एक नेम है, टर्म कह लो, साइन कह लो, डिज़ाइन कह लो या अदर कम्बिनेशन कह लो, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं और उन प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं. यानी हम पहचानने में आसानी होती है कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, एज वेल एज उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने में भी ईजीली हो जाता है. Thus branding is not only done to identify the seller or producer but also to make your product superior than competitor product. बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग सिर्फ यही नहीं है कि हम सेलर को आइडेंटिफाई कर सकें, बल्कि ये भी है कि प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी क्लियर होती है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से. जैसे अगर मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके सामने प्रेजेंट करूँ, स्पेशली द टू पेन वी हैव अ, द फर्स्ट वन इज़ अ विन गाइड एंड नंबर सेकेंड पेन इज़ अ फेयर रीटोमीटर. सो यू कैन सी दे आर बेसिकली टू पेन फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांड. सो यू कैन सी डैट विद द हेल्प ऑफ द ब्रांडिंग हम इन सब के नेम से या इनके साइन से हम क्लियर कर लेते हैं कि ये रीटोमीटर है और ये विन गाइड है. ओके, ये इनके साइन और सिंबल से, इनके नेम से क्लियर हो जा रहा है. अब इनके ब्रांड से ये भी क्लियर हो जाता है कि ये पेन किसका है, यानी हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूर से ही कि ये प्रोडक्ट विन का है और ये प्रोडक्ट फ्लेयर रीटोमीटर है. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन ही करना ही एम नहीं होता है, बल्कि ब्रांडिंग के हेल्प से कस्टमर के मन में ये रखा जाता है या कस्टमर के मन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है. यू कैन सी डेट अ पेन में इतने सारे रेंजेस हैं. जब आप पेन खरीदने जाते हो तो यू गेट कन्फ्यूज कि हम कौन सा पेन खरीदें. तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग भी आपको इन्फ्लुएंस करती है कि आप कौन से पेन को परचेस करते हैं. इट इज़ अ जनरल टर्म कवरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज गिविंग अ ब्रांड नेम टू अ प्रोडक्ट, डिज़ाइनिंग अ ब्रांड नेम एंड पॉपुलराइजिंग इट. सो ब्रांडिंग एंड ब्रांड अलग अलग है. ब्रांड का मतलब क्या होता है? नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और अदर कम्बिनेशन used to identify the product and differentiate it from that of its competitor, that is a brand. Number two, what is a branding? Branding is a process. Branding is a process in which we giving a brand name to a product. यानी ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देते हैं, उसका ब्रांड मैक डिज़ाइन करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस in which we give the brand name to a product, design a brand mark and popularizing it. Okay, the term related to the branding are as follows. Brands related to terms हैं, so you can see it. The first term related to the brand is, the number one is brand. So what is brand? A brand is a name, term, sign, symbol, design or some other combination of them for the identification of the product. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, what is brand? ब्रांड एक नेम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है या डिज़ाइन है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक अ नाइक, रिबॉक, LG. एंड व्हाट इज़ अ ब्रांड नेम? द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम. यानी कि ब्रांड को कॉल करने के लिए, ब्रांड को बुलाने के लिए हम जिस नाम को यूज़ करते हैं उसे हम लोग ब्रांड नेम कहते हैं. जैसे यू कैन सी डैट इट इज़ अ वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रांड, यानी ब्रांड को जिस नाम से बुलाया जाता है उसे हम लोग ब्रांड नेम कहते हैं. जैसे मैगी, लेक्स, एम्बुजा सीमेंट. ओके, एंड नंबर थर्ड इज ब्रांड मार्क. तो ब्रांड मार्क में भी यू कैन सी डैट द पार्ट ऑफ ब्रांड which cannot be spoken but can be recognized is known as a brand mark. Generally you can see that कि कभी कभी कुछ ब्रांड के नेम नहीं होते, उसके कुछ साइन होते हैं. तो जो उनके साइन है, सिंबल है, उनको हम ब्रांड मार्क कहते हैं. जैसे कि जिसको हम बुलाते नहीं हैं बल्कि उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइक
महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के फ्लाइट्स पे महाराजा के साइन होते हैं। ब्लू बॉल ऑफ पेप्सी, यू कैन सी द पेप्सी बॉटल पे ब्लू बॉल होती है। एप्पल साइन ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन ETC, तो यू कैन सी द एप्पल के मोबाइल फ़ोन में एप्पल का साइन होता है। पीछे आप बैक साइड देखोगे तो यू कैन सी द साइन। MI के फ़ोन में भी आप देखोगे तो MI का साइन होता है। सो यू कैन सी डैट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके नेम होते हैं, मैगी के, लक्स, कैम्बुजा के, बट कुछ के मार्क होते हैं। जैसे अगर आप देखो बेसिकली रिबॉक के शूज़ में, नाइक के शूज़ में, LG के प्रोडक्ट में, तो उसमें एक स्पेशली सैम्बल क्रिएट होता है, तो वो सैम्बल को हम लोग ब्रांड मार्क बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज़ अ ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। व्हाट इज ट्रेडमार्क? द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। बेसिकली अगर हम बात बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना एक ब्रांड मार्क डिसाइड किया, रिबॉक ने या एनी अदर ब्रांड्स ने अपना एक ट्रेडमार्क डिसाइड किया, और उस ट्रेडमार्क को एप्पल ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा लिया। किसमें? गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड करा लिया कि ये ट्रेडमार्क सिर्फ मेरा है, यानी उसने अपने ब्रांड मार्क को रजिस्टर्ड करा लिया, तो बन गया उसका ट्रेडमार्क। यानी बेसिकली ब्रांड मार्क का मतलब क्या होता है? सैम्बल यूज टू आइडेंटिफाई द सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम उस एप्पल के फ़ोन में हम बैक साइड में देखते हैं तो एप्पल का साइन बना होता है, तो वी कैन सी दिस प्रोडक्ट, बहुत ही दूर से हम पहचान जाते हैं कि ये एप्पल का फ़ोन है। अगर ये आईफोन है, ये लैपटॉप जो है इस कंपनी का है, यू कैन सी डैट। बेसिकली जब वो कंपनी उस ब्रांड मार्क को रजिस्टर्ड करा लेती है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, तो वो उसका बन जाता है ट्रेडमार्क। सो द वेरी क्लियर अबाउट इट, ब्रांड मार्क को कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता होता है, यानी आप कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, बट ट्रेडमार्क को एक लीगल प्रोटेक्शन मिला होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। सो द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। नो अदर फर्म कैन यूज द नेम और साइन विच अ कंपनी गेट्स लीगल प्रोटेक्शन, यानी कोई और फर्म उस नेम को या उस साइन को यूज़ नहीं कर सकती। जैसे मारुति सुजुकी साइन ऑन मारुति कार, यू कैन सी द मारुति कार, सुजुकी की कार में आप मारुति कार का एक साइन देखते हैं। सो बेसिकली वी कैन discuss the few important terms related to the brand. So what is brand? So basically at the end of the brand we can say that the brand is a name, term, sign, symbol, design or some other combination of them for the identification of the product. What is brand name? यानी कि ब्रांड नेम का वर्बल पार्ट, जिस नेम से हम किसी ब्रांड को बुलाते हैं। ब्रांड मार्क उसका एक सैम्बल या साइन जिसको देखकर हम उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क? जब हम ब्रांड मार्क को क्या करा लेते हैं, लीगल प्रोटेक्ट करा लेते हैं कि ये ब्रांड इस कंपनी का है, ये ब्रांड इसका है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। यानी व्हेन द ब्रांड मार्क registered under the trademark act, or other words we can say the part of the brand which is given a legal protection. No other firm can use a name or sign for which a company gets legal protection, that is a trademark. And one more important point for you, that is a branding. What is a branding? So branding is a process in which we give a name, sign or symbol to the product to recognize of a particular product and services. सो बेसिकली ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को उसका नेम, साइन, सैम्बल प्रोवाइड करते हैं और उसको पॉपुलराइज करते हैं। पॉपुलराइज करने का मतलब क्या है कि लोग को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना कि ये ब्रांड इस प्रोडक्ट का है और आप इस ब्रांड से इस नेम को पुकारे जा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द कंज्यूमर पे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांडिंग, सो वी कैन से दैट लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांडिंग। सो फर्स्ट एडवांटेजेस वी कैन सी दैट द एडवांटेजेस टू द मार्केटर्स, यानी ब्रांडिंग का मार्केटर्स के लिए क्या एडवांटेज होता है। तो फर्स्ट वन, enables product differentiation. Yes, with the help of branding हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसलिए कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का, ये प्रोडक्ट किस कंपनी का। नंबर
सेकेंड, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। ब्रांड के बिना, अगर आप खुद देखो, ब्रांड के बिना किसी प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली एक प्रोडक्ट जैसे पेन ही है, पेन तो लाखों हैं, पेन की कैटेगरीज लाखों हैं, तो आप अपने पेन को अगर हिट कराना चाहते हो, अपने पेन्स की सेलिंग को इंक्रीज़ करा चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पेन का ब्रांड डिसाइड करना पड़ेगा, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क या सिंबल और साइन, अदर थिंग्स, जिससे कस्टमर आपके ब्रांड को अलग से पहचान सके और आप उसका ईजिली एडवर्टाइजिंग भी करा सकें। नंबर थर्ड फ़ायदा होता है द डिफरेंशियल प्राइसिंग। यस, विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को प्राइस अलग चार्ज कर सकती है ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग। यू कैन सी डैट अगर आप सिंपल ब्रांड के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका प्रोडक्ट सुपीरियर वैल्यू या सुपीरियर प्लेस गेन कर लेता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। जैसे अगर दो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, और यू नो वेरी वेल जो बी प्रोडक्ट है इसका मार्केट में ब्रांड अच्छा है, लोगों की डिमांड अच्छी है, इसके ब्रांड की एक्सेप्टेंस है, ब्रांड की लॉयल्टी है कि पता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, या इसकी पहले तो ये क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आती। दूसरा ये आपके मन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये प्रोडक्ट के साथ फैशन है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो आप कहीं ना कहीं उसके लिए ज़्यादा प्राइस देने को तैयार भी हो जाते हैं। नंबर 4, ईज़ इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये बहुत ही बेसिक और वेरी कॉमन टॉपिक है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग कोई भी मार्केटर अपने न्यू प्रोडक्ट को ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो इफ़ अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस अंडर द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, इट इज़ लाइकली टू बी एक्सेप्ट ईजिली एंड गेट अ क्विक स्टार्ट। यानी अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड नेम है, एक अच्छा ब्रांड मार्क या सिंबल है, तो यू कैन ईजिली एक्सेप्टेबल, बिकॉज पहले तो आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ब्रांड नेम अच्छे हैं, तो अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पुराने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट दी एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर कि ब्रांड नेम का कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यू कैन सी दैट द नंबर 1 इज एडवांटेज द हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग कस्टमर ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन। उसे इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि ये ब्रांड की चीज़ें अच्छी होती हैं, इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट देखता है और ख़रीद के लेकर आ जाता है। क्वालिटी को लेके इंश्योर होता है। द सेकेंड वन इज इंश्योर्स क्वालिटी, बिकॉज ब्रांडिंग इंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्ट एंड हेल्प्स इन द बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर, क्योंकि ब्रांडिंग के बेसिस पे ही कस्टमर की एक क्वालिटी डिसाइड होती है, उनके मन में एक माइंड सेट हो जाता है कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होता है। द थर्ड वन इज स्टेटस सिंबल। समटाइम्स ब्रांड बिकम्स स्टेटस सिंबल, कस्टमर फील प्राउड एंड सेटिस्फाइड इन द परचेजिंग दैम। ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है। यू कैन सी डैट व्हेन वी परचेज एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट, सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फिनोनिमा होता है कि हम अपने आप को प्राउड समझते हैं और उसको परचेस करने में ही अपने आप को अच्छा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू परचेज अ लैपटॉप ऑफ एप्पल, अगर आपने आईफोन के आई सीरीज़ के अगर आपने लैपटॉप खरीद लिए, एप्पल्स के लैपटॉप खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने कलीग से, अपने बैचमेट से एक सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, आपके अंदर एक प्राउड मोमेंट आ जाता है, बिकॉज यू परचेज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट वेयर एज योर कलीग, योर बैचमेट परचेज अ लोकल प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके स्टेटस का सिंबल होता है कि अरे मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, अनब्रांडेड प्रोडक्ट मैं थोड़ी ना यूज़ करता। यू कैन सी सच काइंड ऑफ लाइन फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर बैचमेट्स, फ्रॉम योर रूममेट्स, फ्रॉम योर कलीग्स। अगर आप ये चीज़ देखो तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस का सिंबल को भी रिकॉग्नाइज करता है। लोअर क्लास के अगर मेंबर्स होते हैं, यू कैन सी डैट उनको ब्रांड से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उनको इससे मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट उनकी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करते हैं, उनकी यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली जनरली मीडियोकर का काम लेती है, कुछ प्रोडक्ट ब्रांडेड यूज़ करती है, कुछ प्रोडक्ट लोकल यूज़ करती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच फैमिलीज़, रॉयल फैमिलीज़, तो वी कैन सी दैट उनका मोबाइल फ़ोन से लेकर, कपड़े से लेकर, उनकी गाड़ियों से लेकर, ऑल द थिंग्स आर द ब्रांडेड, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज द स्टेटस सिंबल। कहीं ना कहीं आपके
कपड़े, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपकी कार्स, आपका घर, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप ब्रांडेड यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके स्टेटस को भी सिंबलाइज करता है. सो वी कैन सी दैट लॉट्स ऑफ benefits of the branding to the marketer as well as to the customer. So we can see lots of things related to the product mix. So before the concluding of this video, I want to request to all the students कि please take a exercise question from your book and solve the case studies from this chapter.